السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول دل کرائی کے لیے خالی نہیں ہے، بلائبہ ناصر کی ایپیسوڈ نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 دن مزید کیسے گزرے اسے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس رات صدر بیگم اسے رضامند کر گئی تھی۔ اس کی رضامندی پر کوئی حیران نہیں تھا، سبھی جانتے تھے کہ وہ صدر بیگم کو انکار نہیں کر سکتی۔ اگر وہ خود اس سے بات کرنے گئی تھی تو جواب ہاں میں ہی آنا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن وہ مزید خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی ابراہیم کو بے چین کر گئی تھی۔ تمام دن وہ کیفے پر ہوتی، گھر رات گھر لوٹتی اور اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھ کر ڈنر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں گم ہو جاتی۔ وہ دور دور سے ہی اس کا ہر عمل، ہر انداز دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا، لیکن اس کا درد بانٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے حق کب دیا تھا؟ صدر بیگم اگلے روز سے ہی زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر چکی تھیں۔ وہ اس کے اور شیرین دونوں کے لیے ہر چیز ایک جیسی لے رہی تھیں، زیور، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ ان کے چہرے سے سچی خوشی جھلک رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک بات بیٹھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہو کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ابراہیم ملک کے حوالے سے اس کے لیے چیزیں لا رہی تھی، اور یہ ایک حوالہ اس کا دل ابراہیم ملک کے لیے مزید تنگ کر چکا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں ٹیبل پر تمام زیورات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اطہر ملک اور افضل ملک ان کی خوشی میں خوش تھے۔ مما، یہ تو بہت بھاری ہے، میں نہیں کیری کر پاؤں گی۔ بھاری جڑاؤ سیٹ اپنے ہاتھوں میں تھامے شیرین دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آپ یہی پہنیں گی؟ خاموش بیٹھے زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ شیرین چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ 2 دنوں سے اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ اس کے جھجک کے پیش نظر وہ کمرے میں بھی اسے کافی اسپیس دے رہا تھا۔ یوں سب کے سامنے مخاطب کرنے پر وہ جذبات سی ہو گئی تھی۔ وہ بغور اس کا تاثرات دیکھتے اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ اماں جان، نکاح تو جلدی جلدی میں یوں ہی ہو گیا۔ ریسیپشن پر مجھے میری دلہن پوری طرح میرے لیے سجی سوری چاہیے، مکمل سنگار کے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں سے وہ سیٹ لے کر دیکھتے وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ وہ صدر بیگم سے مخاطب تھا، لیکن اس کے الفاظ اور انداز سے وہ اچھی خاصی سہم چکی تھی۔ مما، میں یہ کیسے؟ اس نے روحان سے ہو کر مدد طلب نظروں سے صدر بیگم کی جانب دیکھا۔ دلہن ہو تم، اپنی شادی پر نہیں پہنو گی تو کب پہنو گی؟ اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں امڑتی التجا نظر انداز کرتی وہ کچھ سخت لہجے میں بولی۔ اس کا زوال کو نظر انداز کرنا، اس سے دور دور رہنا ان کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ بیلا، یہاں آؤ۔ اسے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاموشی سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ ابراہیم خاموش بیٹھے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جو سپاٹ چہرے لیے سامنے پھیلی چیزیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ یہ سیٹ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنوایا تھا، ایک شیرین کے لیے اور ایک تمہارے لیے، بالکل ایک جیسے۔ کل کے فنکشن میں چاہتی ہوں تم یہی پہنو۔ بھاری کندن کا ہار اس کے گلے سے لگا کر دیکھتی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے انہیں خوش دیکھ رہی تھی۔ ان ساری چیزوں سے مجھے دور رکھیں مسز افضل۔ شام میں مہندی ہے، آپ کے حکم کے مطابق مجھے وہاں بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں میں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اپنا بیگ لے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہار کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ دوری ان کی ہی پیدا کرتے تھی۔ ابراہیم نامحسوس انداز میں سب کے درمیان سے اٹھتا، اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بیلا، بیگ بیڈ پر پھینکتی ابھی لیٹی ہی تھی، اس کی آواز پر ذرا سی اٹھ بیٹھی۔ اب آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو بھی کوئی حکم صادر کرنا ہے؟ ارے نہیں، میں تو بھول ہی گئی، یہ عادت آپ کو وراثت میں اپنی اماں جان سے ہی تو ملی ہے۔ کہیں کون سا نیا حکم لائے ہیں آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر اور دھیرے سے اسے قریب کرتے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بس ایک التجا ہے۔ میری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں تو بخوشی اپنی رضا سے ہو جائیں بیلا۔ میرا بھروسہ کر کے صرف میرے لیے میری بن کر آ جائے۔ ایک بار میری محبت کا اعتبار سونپ دے۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا۔ دور ہٹیں، آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو آپ کی ماں نے خرید کر آپ کا نام کر دی ہو۔ وہ تڑپ کر دور ہوئی۔ بیلا، سب سے تنی رگوں کے ساتھ وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ میری ماں کے متعلق بات کرنے سے گریز کیا کریں۔ میری ذات تک آپ کی ہر بات برداشت کر لیتا ہوں میں۔ اماں جان اور میری ماں کا ذکر ضروری نہیں ہے بیلا۔ اس کی تنی ہوئی رگوں کو دیکھ کر اسے بھی اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ آپ جائیں پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ یہاں دیکھیں، میری طرف دیکھیں بیلا، مجھے بتائیں کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے زبردستی اپنے حصار میں لیے وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ کیوں میری ماں آپ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ وہ روتی ہوئی اسے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ میری آنکھوں کے رنگ وہ آج تک نہیں پڑھ پائیں، لیکن آپ کی آنکھوں کے ایک ایک رنگ سے واقف ہے۔
میری خوشی کس چیز میں ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے، لیکن آپ کی خوشی مجھ میں ہے، یہ بات وہ جانتی ہے۔ وہ وہ آج تک میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائی ابراہیم، لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے محبت دیکھ سکتی ہیں۔ میری سانسیں رکتی ہیں آپ کے لیے ان کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر۔ مجھ سے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائے نا، مجھ سے کیوں نہیں کرتی وہ پیار؟ اس کے سینے پر سر مارتی وہ بلند آواز میں روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں کرتا ہوں آپ سے محبت، آپ میری رگوں میں دوڑتے خون میں بستی ہیں بیلا، آپ محبت کا امرت ہے میرے لیے، اب آپ سے دستبرداری میری سانسیں تھمنے کا سبب ہوں گی، میری دل کی تمام رگوں میں خون منجمد کر دے گی بیلا۔ اس کے نازک وجود کو سختی سے بھینچے وہ سب سے کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو بیلا کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کے لمس کی شدت تھی، یہ الفاظ کی حدت وہ کانپ سی گئی تھی۔ ابراہیم، وہ دھیرے سے بولی، اسے اپنی پشت بھیگتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی گرفت میں مزید مضبوطی ہو رہی تھی۔ ابراہیم، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا، وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ بیلا کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی صورت میری آنکھوں کی پتلیوں میں جم چکی ہے، آپ کا عکس ہر شے میں واضح محسوس کر سکتا ہوں، میری نظریں جس جانب جاتی ہیں آپ کی شبیہ ہر صورت میں بھرپور نظر آتی ہے، آپ میرے وجود کا ایک لامعنی حصہ ہیں، آپ کی یادیں وہ آسیب ہیں جو میرے وجود کی آہنی دیواروں سے چمٹی بیٹھی ہے، ان کو کھرچنے کی کوشش میں مجھے جان سے جانا ہوگا بیلا۔ اس کے بھیگے الفاظ بیلا کے اعصاب چل کر رہے تھے، وہ اس کی گرفت میں اس کے سینے سے لگی ساقت سے اپنی پشت بھیگتی محسوس کر رہی تھی، اپنی گردن پر نمی محسوس کرتے اس کے احساسات جامد سے ہو گئے تھے۔ ابراہیم، کافی دیر بعد اس نے سرسراتی آواز میں اس کا نام پکارا، وہ اب بھی اسے بھینچ کر یوں ہی کھڑا تھا۔ بن گیا اب شاہ رخ خان، اب جان چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اپنی سانسیں ہموار کرتی ہوئے پورا زور دیتے اسے پیچھے اٹھاتی ہوئی بولی، سرخ چہرہ لی اسے گھول بھی نہیں پائی تھی، وہ لب بھینچ کر چند پل اسے تک کمرے سے نکالتا چلا گیا۔ مہندی کی رسم لان میں ہی منعقد کی گئی تھی، پورے گھر کو پیلی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ کچھ چینی کی طبیعت اور بیلا کی ضد کی وجہ سے آج کے فنکشن میں صرف قریبی رشتے دار اور کچھ فیملی فرینڈز ہی مدعو تھے، پوری ذمہ داری زوار اور ابراہیم نے ہی اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ 1 گھنٹے میں مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ شینی کے ساتھ ساتھ وہ بتیا سدرا بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی رنگ کی قمیص کے ساتھ آج غرارے میں ملبوس آج دوپٹہ سر پر سجائے اپنے تیکھے نکوچ کے ساتھ ساتھ ابھی وہ حسین تر لگ رہی تھی۔ سرخ آنچل کے سائے تلے ان دونوں کو لان تک لایا گیا تھا۔ سامنے نظریں اٹھائیں وہ اسٹیج پر کھڑے شہزادوں سے آن بان والے شخص کو دیکھنے لگی، سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہنے بھورے مال کالے بالوں کو پیچھے کی جانب جمائے، بھوری آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آبادگی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ اسٹیج سے اتر آیا۔ تو نے دیکھی ہے واللہ ایسی رہنائی کبھی، تو اس سانولی کے چہرے کی کشش دیکھ۔ پورے استحقاق سے اسے اپنے اثار میں لیے جھک کر اس کا غرارہ اٹھائے، وہ کتنی ہی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ شیرین نے پل کے چپک کر آنسو اندر اتارے، اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے، اسے اپنے پہلو میں بٹھاتا وہ پوری شان سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر اب بھی برنولا لگا ہوا تھا، جسے وہ بہت احتیاط سے تھامے ہوا تھا۔ دوسری جانب مہندی کلر کی کامدار کرتی کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس سوگوار سا حسن لیے بیلا حسین ترین لگ رہی تھی۔ تھوڑی کا وہ گڑھا جو اس کے ساتھ تھی آج اداس اداس سے لگ رہا تھا، سرخوتی آنکھیں گلابی کنارے بہت سرو لینے کی چغلی کرتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ آج بھی دوپٹہ سے بے نیاز تھی۔ ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں یہ کوئی اتنی معیوب بات بھی نہیں تھی، لیکن ابراہیم ملک کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ لب کھینچ گیا، وہ اپنی چادر درست کرتا شان سے چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ آس پاس کھڑی عورتیں اس پر نظر گاڑے باتیں بنا رہی تھیں، وہ سب سے بے نیاز اس کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ کتنے آنسو اپنے اندر اتار رہی ہے۔ ان دونوں کو یوں روبرو دیکھ کر بیلا کو اسٹیج کی جانب لے جاتی لڑکیاں سائڈ ہوتی پرشوق نگاہوں سے نتکتی شرارتی جملے کہہ رہی تھیں۔ وہ اطمینان سے اس کے مزید قریب آتا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بیلا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، اگلے ہی لمحے اس کا پوری دس لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی وہ ساکت سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں نمی آ ٹھہری تھی۔ وہ ساکت سی نظروں سے اس شخص کو تک رہی تھی جو اب بھی اس کے ماتھے پر لب رکھ کے کھڑا تھا۔ محبت، شدت، عقیدت، اس ایک لمحے سے وہ اسے کیا کچھ محسوس نہیں کروا رہا تھا۔ آپ جو ہیں جیسی ہیں ابراہیم ملک کی ہیں، مسز بیلا ابراہیم ملک۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اپنی چادر پورے شان سے اس کے سر پر سجاتا
और इसका हाथ हमें स्टेज तक लाया था। और मेहंदी के लिबास में इसकी काली चादर में लिपटी इसकी मोहब्बत के बारिश में भीगी हम आंखों से इसे देखते हुए इर्द से बेखबर हो चुकी थी। सरगोशियाँ मुस्कुराहट और कहकों में बदल चुकी थी। कितनी निगाहें उठी थी बेला इब्राहिम मलिक पर, हसरत भरी, रश्क भरी, और इसे मातबर कर गया था इसकी ज़ात का मान बढ़ाकर। आज मैंने पूरी ज़बानी को बता दिया कि यह हसीन ज्वालामुखी इब्राहिम मलिक की है। इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ महसूस करता हुआ निचला लब दबाए मुस्कुराया। नहीं बेला, नहीं, देख इसकी तरफ सिस्ता हीरो। वह दिल की हालत से परेशान होती ज़ेरे लब बड़बड़ाई। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक जारी था। वह तबीयत का बहाना करती पहले ही उठ चुकी थी। ये शख्स इसके आवाज़ पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसके पहलू में बैठना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। उपटन भी नहीं लगवाएंगे? कितने मान से पूछा था उसने। वो बेड पर लेटी पहलू बदल गई। न जाने क्यों, लेकिन आज इब्राहिम का सबके सामने इसका करीब आना, इस पर अपनी चादर डालना इसे अच्छा लगा था। कितना अनोखा सा एहसास था ये। बिना कुछ जताए, बगैर कुछ कहे वो इसे इतने लोगों के सामने मोतबर कर गया था। इसे महसूस भी नहीं हुआ इसके लब पर मुस्कुराहट उभर आई थी। इसकी काली चादर अब भी इसके तन पर लिपटी थी। इसकी महसूस को खुशबू इसे अपने इर्द गिर्द बिखरती महसूस हो रही थी। वह ये चादर इसकी खुशबू खुद में बसाने के लिए इसे पहनाता था, मगर गैर इरादी तौर पर वह इसे अपनी खुशबू का आदी करता जा रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वह होश में आई। बाबा, अजय बाबा जान। अफसर मलिक को दरवाजे पर मौजूद देखकर वह मुस्कुराती हुई बोली। वह शफ़क़त से इसकी पेशानी चुमते इसके पास आ बैठे। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? बाबा की चिड़िया खुश तो है ना? इसका चेहरा हाथों में भरे हुए शिकस्त और लहजे में पूछ रहे थे। इनके हाथों को आंखों से लगाकर लबों से लगाती हुई मुस्कुराई। मुतमईन हो आप? इनके हाथों पर थोड़ी टिकाऊ पुरसकून से बोली। उसने खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वह नहीं जानती थी वह खुश है या नहीं, लेकिन इब्राहिम के आज के अमल के बाद वह मुतमईन ज़रूर हो गई थी। आप खुश रहेंगी बेला? इसके चेहरे पर तमानियत का अक्स ने भी मुतमईन कर गया था। बाबा चाहते हैं इनकी गुड़िया अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मौके पर ये पहने। एक बॉक्स इसके हवाले करते उन्होंने मोहब्बत से कहा था। इनकी आंखों में हसरत बह रही थी, आंखों में नदामत का अक्स वाज़ेह था। वो उलझ सी गई। बाबा, ये ड्रेस क्या बहुत स्पेशल है? उसने इश्तियाक से पूछा। बहुत ख़ास है मेरी जान, आपके बाबा की ज़िंदगी का एहसास है। इनकी आंखों के किनारे भीग रही थी। कितनी देर वो इसे अपने सीने से लगाए इससे बातें करते रहे थे। इनके लहजे का गर्व बखूबी महसूस कर सकती थी, लेकिन वजह जानने से कासिर थी। एक हुस्न मुजस्सिम का वो पहरा रंगे ढल जाए धनक जैसे किसी चंद्र किरण में। रात मुकम्मल हसीन और जौवन पर थी। चमन में चंद बागी फूलों की महक ने चांदनी पर एक शहर छोड़ दिया था, और इस शहर ने चांद को कदर बेबाक किया था। चांद पर इन जुगनों के रूप धार चुकी थी। समा चांद के तर्जकी में खो चुकी थी, और फिजा चाशनी में धो चुकी थी। रात की तारीकी चंद्रमुखी की जुल्फों की तरह स्याह मगर नमदीदा सी थी। ये रात इन चारों की जिंदगी में अलग मोड़ ले आई थी। वलीमा का फंक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर शहर के एक बड़े होटल में मुनक्किद था। सवार के सीएसए में पोजीशन बनने पर शहर के बहुत से लोग मौजूद थे। वो पूरे एतमाद से शीरी का आता में इसे एक मेहमान से मुतारिफ करवा रहा था। और जितनी पब्लिक देखकर सहमी इसके साथ इसके बाजू से लगी खड़ी थी। चाबी की गुड़िया की मानित इसके साथ हरकत कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। इसके कानों में सरगोशी करते हुए मोहब्बत से बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा साहबी। आंसू भरी नजरों से तकती हुई बोली। लोगों की बातें इनकी नजरें से परेशान कर रही थी। इसकी हालत के पेश नज़र वो इसीलिए स्टेज तक आ गया था, जहाँ पहले इब्राहिम खड़ा था। सवार और शीरी से बात करते इब्राहिम की नजरें अफजल का हाथ थामे एंट्रेंस से दाखिल होती बेला पर गई, और फिर पलटने से इनकारी हो गई। मैरून घुटनों तक आती मैक्सी पहने, सर पर हम रंग दुपट्टा सजाए इस परी जैसी लड़की पर टूट कर रूप आया था। चांदनी रात में वादी चांद से उतर कर इसकी जानिब बढ़ रही थी। चांद बादलों की ओट में चुप सा गया था। इसके वजूद को छू कर गुजरती हुई हवा की लहर इसके कानों में सरगोशियाँ करती महसूस हो रही थी। हाथों में कंगन, नाक में नथनी, किस कदर सुहानी लग रही थी वो। जहर सदा से इसे तक रहा था। वो इसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो अब भी किसी जहर सदा में गिरफ्तार इसे तक रहा था। पोर सजी उससे सिर्फ इसे जहर सदा नहीं कर रही थी। वो अफसर मलिक को शिद्दत से माजी की याद दिला गई थी। किसी मेहमान से बातें करती सी तरह बेगम ने ठटक कर स्टेज पर इब्राहिम के पहले में बैठी बेला को देखा। अफरोज, इनके लबों ने बेख्तियार हरकत की थी। दिल में दर्द सा उड़ा था।
अपने हसीन रूप के साथ वहाँ मौजूद दो लोगों को गहरे कर्म में मुब्तला कर चुकी थी। वो हूबहू वैसी ही थी। इसी पल सजी सवरी वह बेला अफजल मलिक नहीं थी। उन्होंने बेसाख्त अफजल मलिक की जानिब देखा, जो नम आंखों से लपीं झिझक तक बेला की जानिब देख रहे थे। लेकिन इनकी आंखों में वो अक्स बेला का नहीं था, वो अक्स अफरोज अहमद का था। इन्हें अपना दिल दर्द से फटता महसूस हो रहा था। आज ये जंगली बिल्ली बहुत हसीन लग रही है, वो शरारत से कहते इसे करीब कर गया। भाड़ में जाएं आप। अपनी पेंसिल हील पूरी ताकत से उसके पैर पर मारते हुए दांत पीस कर जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, वह तो आपका ठिकाना नहीं। खैर, दोनों साथ चलेंगे। इसकी नाजुक कमर पर हाथ डालकर इत्मीनान से अपने करीब करके उसके कानों में चुका दिलकश मुस्कुराहट लबों पर लिए बोल रहा था। दूर से देखने पर वह कोई मोहब्बत भरी सरगोशी करता मालूम हो रहा था। मैम, अफसर के कंधे पर हाथ रख के प्लीज़, फोटोग्राफर के दांत कोसते हुए जैसे कहने पर मुझे पहले ही जली बुनी खड़ी थी। अपनी दो पुकारों को उसकी जाने पड़ चुकी थी। क्यों, तुम्हारी पप्पो की बेटी की शादी है जो तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही? मैम कंधे पर हाथ रखे मैम मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद तुम मुझे कहोगे मैम, फूट फूट कर रोक कर दिखाएं आखिर को इकलौती शादी का फोटो एल्बम जो है बच्चों को दिखाना भी तो होगा ना भाई। तुम्हारी मम्मा अपनी रुखसती पर होती आलिया भट्ट लग रही थी। कमर पर हाथ रख के इसके सामने खड़ी वो अपने दुल्हन आपे की परवाह के बगैर मुस्कुराती शुरू हो चुके थे। बेला, इब्राहिम ने हंसते हुए इसकी जानिब देखा। शीरी, कमरे में दाखिल होते इसने उसे पुकारा। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ देर पहले वो सब कर आए थे। बाहर के कुछ मामला निपटा कर वो कमरे में आया तो इसे मौजूद नहीं पाकर वो गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ करने से पहले ही आप यूँ रो रही हैं? इसकी संजीदा सी आवाज़ इसकी समाज से टकराई। शीरी ने गर्दन मोड़कर आवाज़ की सीम देखा, जहाँ वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा संजीदा से इसे ही देख रहा था। इसे यूँ सामने देखकर आंसू मजीद फिसल का चेहरा भिगोने लगे। वल्लभ खींच कर इसे देखता इसके नज़दीक आ खड़ा हुआ, दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द जमाए वह गहरी निगाहों से इसका रोया रोया चेहरा देख रहा था। बाहर जो बातें वो सुनाया था इसे अच्छी तरह अंदाजा था, और रोने का ही शुक्ल पूरा कर रही होगी। सुर्ख और सब्ज रंग के बारीक कामदार लहंगा चोली में मलबूस वह इसे दुनिया बुलाने पर मजबूर कर रही थी। हर एक कामदार दुपट्टा सरा का शाना बड़ा ठहरा था। रोने की वजह से आज भी वो अपना मेकअप पूरी तरह खराब कर चुकी थी। सामने खड़ी नाजुक सी लड़की को इस रूप में और अपने लिए सजे देखने के लिए इसने रातें दुआओं में गुजारी थी। वो आज इसे सहमी नहीं थी, बहती निगाहों में शिकवा ली इसकी जानिब देख रही थी, जैसे सारा कसूर है इसका हो। भीगी पुरशकवा निगाहें उठाए वो इसका सब तस्मा रही थी। कहते हैं, क्या कहना चाहती हैं? इसकी निगाहों का ये शिकवा इसके दिल पर बरछें फेर रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज लोग मुझे हमदर्दी की निगाहों से देख रहे थे। इनकी निगाहें, इनकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितनी मिसमैच हूँ तुम्हारे साथ। तुम तो सबकी नज़र में अजमत की बुलंदियों पर पहुँच गए। तो तुमने नहीं सुनी लोगों की वो हमदर्दी जो तुम्हारे साथ थी? खुद से 2 साल बड़ी एक बीमार लड़की जिसकी मंगनी इसकी बीमारी की बिना पर टूट गई, इसे अपना कर तुमने अपना मुकाम बहुत ऊंचे बना लिया सवार मलिक। और मुझे, मेरी ज़ात को सबकी हमदर्द भरी निगाहों के लिए छोड़ दिया था तुमने। अपने जिद में मेरा मजाक बना दिया तुमने। नाजुक हाथ इसके फौलादी सीने पर बरसाती वो दिल में सारा बुखार वो बाहर निकाल रही थी। वो इत्मीनान से खड़ा पीछे से देख रहा था। रोने की वजह से सुर्खी इसकी नाक में सची सादा सी नथली इसके बोलने पर सिर्फ लिपस्टिक से रंगे लबों से मसौती क़यामत बर्पा कर रही थी। उसने देखते निगाहों का रुख फेरा। इस वक्त इस लम्हे भर की बेखुदी सामने खड़े नाजुक सी लड़की को काफ़ी हद तक इसे बदगुमान कर देती। वो अब थक कर गहरी सांसें ले रही थी। आई एम सॉरी, नरमी से आंखों से बहते मोती चूमते वो अपने ना करता गुनाह की माफ़ी मांगता गोया इसके शिकवे ख़त्म कर रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी। इतना रो लेने के बाद अभी से बोलने में दुश्वारी हो रही थी। गहरी सांसें लेती बाकी का जुमला इस पर मुक्के बरसा कर जाहिर कर रही थी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है आपको। एक एक तकलीफ का साला करूँगा मैं, लेकिन अभी रोना बंद करें, तबीयत बिगड़ रही है। चूड़ी और मेहंदी से सजी नाजुक कलाई जिन्हें वो मुसलसल इस पर बरसा रही थी। नरमी से इसकी कलाई थाम कर सीने से लगाते हुए संजीदगी से बोला। इसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाने के बाद पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो खामोशी से थाम गई थी। चेंज कर ले, ड्रेस हैवी है काफ़ी। रोने का शुगर पूरा होता देख वो संजीदगी से बोला, इसके नाजुक वजूद के लिहाज से और ड्रेस वाकई काफ़ी हैवी थी। वो खुद भी जल्दी से आज़ाद होना चाहती थी। सवार के कहने पर वह जरा सी उठी, अगले ही पर लहरा को गिरने करती। उसने तेजी का मुजाहरा करते पर वक्त उसे थामा था। क्या हुआ?
तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे साथ लगाते वो फिक्रमंद सा पूछ रहा था। तो ठीक हूँ, थक गई हूँ। उसकी धीमी आवाज़ पर सवार ने उसकी जानिब देखा। वो बात भी मुश्किल से कर रही थी। ऐसे खुद पर गुस्सा या बहुत वाकिफ था इसकी हालत से। इसकी हालत ऐसी नहीं थी कोई जो फंक्शन अटेंड करती। इसे बेड पर बिठाकर इसने भारी दुपट्टे से इसे आज़ाद किया। आंखें मूंदे बैठकर उसे टेक लगा चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कोई मज़ाहमत करती। वह उसकी फिक्रमंद आवाज़ सुन रही थी जो बार बार इसके गाल थपकते उसे तकलीफ की बाबत दरियाफ्त कर रहा था। शीरी, मुझे बताएं, कहीं कोई तकलीफ है? सांस लेने में मुश्किल हो रही है। एक एक करके तमाम जेवर उतार कर इसके पैरों को भी सैंडल से आज़ाद करने के बाद वह नरमी से पूछ रहा था। नहीं, बस सोना चाहती हूँ। मनावी में गर्दन हिलाती इसी तरह बेड पर सिमट कर लेट गई। आज सुबह से इसने मेडिसिन नहीं ली थी जिसका ये नतीजा हुआ था, लेकिन सवार को बताकर वो इसकी सख्ती नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी, इसलिए खामोशी रही थी। शीरी, उठें, ये दूध पी लें। कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ उसके समाज से टकराई थी। उसे सहारा देकर बिठाते दूध का ग्लास इसके लबों से लगाया। मेडिसिन ली थी आपने? इसकी आवाज़ पर इसने चौंक कर इसे देखा जो गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। खाली ग्लास इसके हाथों में देते हुए नफी में गर्दन हिलाई। आंखों में खफ गीली लब भींच पर से टकरा था। वो बेशीर को घोटती लब काट रही थी। आपकी ये हालत दुरुस्त कर लूँ, फिर खबर लेता हूँ इस बात पर मैं, संजीदा लहजे में कहती इसकी तमाम मेडिसिन के इसके सामने बैठा। मुझे नींद आ रही है, ड्रेस भी चेंज करना, मैं थक भी गई हूँ। इसकी धमकी पर वो पराई आवाज़ में बोली। चाहे पहले चेंज करें, फिर आपकी नींद और थकान दोनों का इलाज करते हैं। हाथ की पोछ से नरमी से बरनौला निकाल कर इत्मीनान से बोला। मुझे ज़रूरत नहीं है इलाज की, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ बहुत। दूर से कुछ नहीं होता, मैं अब भी थकी हुई हूँ। वो लब काटती तड़प कर बोली, जाए चेंज कर ले। उसके बेसाख्त अंदाज पर वो मुस्कुराहट दबा गया। नहीं, तुमने कहा। वो सहमी रो देने को थी। कुछ नहीं कहा मैंने, जाए। उसने नरमी से कहते उसकी नाक दबाई। वह फौरन उठ खड़ी हुई थी। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए से देखने लगा जो ढीली सी कुर्ती ट्राउजर में मलबूस कीनत और नजर से बैठ की जानिब देख रही थी। वह जानता था वो अपने लिए किनारा तलाश कर रही है। आहिस्ता से किनारे पर टिकती हुई हमेशा की तरह की जानिब पुश्त के लेट गई। सवार नफी में गर्दन हिलाते इसकी पूंछ पर बिखरे लंबे बाल देखता हाथ बढ़ाकर इसे करीब कर चुका था। वहाँ के मीचती लब खींच गई थी। आपकी इजाज़त के बगैर आपके करीब नहीं आऊँगा मैं, लेकिन इस तरह सहमा नहीं करें। मेरी गुर्बत मेरी बीवी के लिए खौफ का बास बने। मुझे ये बात तकलीफ देती है शीरी। इसके माथों को लबों से छूते हुए संजीदगी से बोला। और सख्ती से आंखें नीचे इसे मुश्किल में डाल रही थी। यार, कुछ नहीं कर रहा, सो जाए। इसका सर अपने निशाने पर रखता इसके बालों में उंगलियां फेरते बोला। आसमान पर तारों की एक दुनिया बसी थी। रात का अंधेरा भी आज दिलकश था, रोशन, हसीन और पुरकशिश। कुछ देर पहले ही अफजल मलिक इसे इसके कमरे तक छोड़कर कहते इस कमरे में वो कभी नहीं आई थी। ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन में सेट वो कमरा अपने मकीन की निफासत पसंद तबीयत को बोलता सब होता। इसके कमरे में फर्नीचर ज़्यादा नहीं थे। जहाज़ी साइज पलंग, वार्डरोब और ड्रेसिंग के अलावा बेड के साइड टेबल। वह कमरा सादा मगर खूबसूरत था। हैरानी से साइड टेबल पर रख के अपनी तस्वीर की जानी पड़ी। वह इसकी तस्वीर थी। इब्राहिम के कमरे में अपनी तस्वीर की मौजूदगी इसे हैरत में मुब्तला कर रही थी। इर्द गिर्द घूमकर पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। कमरे के अंदर दाखिल होते इब्राहिम ने मुस्कुराकर इसे अपने कमरे में इसकी मौजूदगी देखी। पूरे हक से अपने कमरे में घूमती वो कितनी हसीन लगी थी इसे। परिस्तान का अक्स था या इससे कहीं खूबसूरत। दी से बावजूद दिल की हिकायतें जो मोहब्बत की दलीलों बनकर उफ से टकराई थी। वही से नमूदार होने वाली रोशनी में मोहब्बत तलाश कर रहा था। दिल ने हिकायतें बदली थी। बेला, इब्राहिम मलिक। इसकी आवाज़ पर उसकी जानिब घूमी। आंखों में मोहब्बतों का जहां आबादगी से टकरा था। दुल्हन के रूप में पोर पोर सजी हुई इसका ज़ब्त आजमा रही थी। वो खामोश थी। आप जब सामने होती हैं तो लफ्ज़ चुप और दिल साकन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप खुदारा रहम कीजिए। लबों की जंबिश से लफ्ज़ों की माला बुनकर दिल की धड़कन से सांस बनाइए, ताकि लब और दिल मिलकर एक सुरताल कायम कर सके, जिससे तुम्हारी मेरी धुन तरतीब पाकर अम्र हो सके। मोहब्बत पाश नज़रों से इसकी जान देखता हुआ मखमूल लहजे में बोल रहा था। मुझसे ये फिल्मी बातें नहीं किया करे, ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। वो खजल से होकर कहते इसके पास से गुजरने लगी थी। वह इशारों से इसे थाम अपने मुकाबले खड़ा कर चुका था। अब से आपके जब भी करीब आऊँगा, आपको मुकम्मल होश आवाज़ में आऊँगा। एक बार की गलती की सज़ा आप आज तक मुझे दे रही हैं। पूरी शिद्दत से इसके माथे पर सजी झूमर पर लब रखते हुए संजीदा सा बोला। छोड़े मुझे। वो उसको खोती तिलमिलाई थी।
बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, नतली खोले से छूता हुआ मुस्कुरा कर बोला। बाबा ने नहीं कहा। वो पल भर को उदास हुई थी। इब्राहिम ने लब खींच कर इसके उदास चेहरे की जानिब देखा। इस वक्त इसके चेहरे पर बच्चों जैसी उदासी थी। आए मेरे साथ, वो संजीदगी से बोला था। इतनी रात में कहाँ? वो उलझ कर उसकी जानिब देखने लगी। आ जाए आपके चेहरे की उदासी दूर करने। वह संजीदा सा बोलता इसका हाथ हमें कमरे से निकला। चांदनी रात की धुंधिया रोशनी ने रात की बढ़ती तारीकी पर धुंधिया चादर तानी हुई थी। कमरे में मौजूद वो दोनों फरीक अपनी अपनी सोचों में गुम गहरे कर्ब में मुब्तला थे। वो दोनों जो जिंदगी के हमसफर थे, लेकिन समंदर के दो किनारों की मानद, जो साथ चलते हैं असल से लेकिन मिलाप से बहुत परे। बेला अफजल मलिक का सजा सफर वो रूप इन दो फरीकों के दिल पर ओस की मानद पड़ा था। बेला अफजल मलिक इनकी जिंदगी की वह सच्चाई थी जिसे वो दोनों ही बहुत चाहते थे। सिद्रा बेगम ने गहरी सांस लेकर खिड़की के पास खड़े अफजल मलिक की जानिब देखा। वो दोनों ही वाकिफ थे कि आज की रात इन पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। कर्ब मुख्तलिफ थे लेकिन वजह एक ही थी, अफरोज अहमद। अफरोज अहमद का चांद सा सराफा जो आज हूबहू बेला अफजल मलिक में नजर आया था। बाबा, बेला की आवाज़ इन दोनों को हाल मिला पटका था। चोट पोट गहरी लगी थी। अफजल मलिक ने जरा से अपनी आंखें साफ की। बाबा की जान, मेरी चिड़िया, यहाँ क्या कर रहा है मेरा बच्चा? वो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब घूमे। सिदरा ने हसरत से इनकी मुस्कुराहट देखी। दूसरी नजर दरवाजे पर खड़ी दुल्हन बनी बेला की जानिब डाली। आज इन्हें एहसास हुआ था वो तो हूबहू वैसी ही थी, इतनी खूबसूरत, इतनी ही हसीन, वैसे ही काली आंखें, काले बाल, वैसे ही चांद सा चेहरा और थोड़ी कबो खड़ा। फर्क था तो आंखों की चमक का। अफरोज की आंखें शरारत से चमकती थीं, लेकिन बेला, इसकी आंखों में तशनगी थी, हसरत थी, जवाज़ें नजर आती थी। फर्क था लबों की मुस्कुराहट का। अफरोज की मुस्कुराहट में कर्ब नहीं होता था। अफरोज, इन दोनों के ही लबों से बेआवाज़ पुकार निकली थी। और दोनों ही ट्रांस किसी कैफियत में दरवाजे पर खड़ी दुल्हन बनी बेला को देख रहे थे। आज से पहले वो कभी इतना तैयार नहीं हुई थी, कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे इसने, शायद इसलिए आज इससे पहले इन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वह हूबहू अफरोज अहमद का अक्स थी। बाबा, इन दोनों को यूँ अपनी जानिब तकते पाकर इसने उलझ कर एक बार इन्हें पुकारा। जी जी मेरा बच्चा। वह जैसे होश में आए थे। वहीं सिदरा ने अपनी सिसकी दबाई थी। वह अफरोज नहीं, वह तो बेला थी। बेला, इब्राहिम, क्या आवाज़ सब ठीक है ना बच्चों? वह काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुके थे। इस पहर बेला को अपने कमरे में देखकर दिल को हजार ख्वाहिशों ने घेर लिया था। बाबा, आप याद आ रहे हैं? उन बच्चों जैसे मुंह बसोरते बोली थी। नजरें सिदरा बेगम पर ही टिकी थी। इब्राहिम ने बकौल इसकी जानिब देखा। इसकी आंखें इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। अनोखी दुल्हन थी वो। शादी की रात बाबा की याद आ रही थी इसे। बाबा की जान, मरहम आंखों से हंस पड़े थे। वह इनका इश्क थी, इनकी ज़िंदगी का सरमाया थी, इनकी इश्क की निशानी थी। देख लें इनके जुल्म चाचू। इब्राहिम इसका हाथ थामे हंसते हुए अफजल साहब के करीब आया। उन्होंने आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार करते से सीने से लगाया। चलते दिल को करार सा आ गया था। इतने परेशान लग रहे हैं आप मुझे। आपने प्यार भी नहीं कहा, इतना तैयार हुई हूँ मैं आज। मेरी तारीफ भी नहीं की आपने। आपके कहने पर यह ड्रेस पहना मैंने बाबा, वरना मैं अपनी जीन्स ही पहनती। वो इनके सीने से लगी लाड़ से बोली। इब्राहिम की आंखें मुस्कुरा उठी थी। नहीं मेरे बच्चे, परेशान नहीं है बाबा। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत करें। बाबा अपनी शहजादी को खुश मुतमईन देखना चाहते हैं। आप और शीरी तो बाबा का सुकून है। इनकी बात पर मुतमईन से मुस्कुराई। अब अपने कमरे में जाएगी बाबा की चिड़िया, और शोहर की बिल्कुल इसी तरह इज्जत करनी है जिस तरह बाबा की करती हैं। माथे पर प्यार देती उन्होंने मोहब्बत से कहा था। वो एक नज़र अपनी जानिब शरारत से तकरीब इब्राहिम की जानिब देखकर सारी ला गई। अगली नज़र देखते सिदरा बेगम की जानिब उठी थी, जब बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे बैठी थी। इब्राहिम ने बगौर इसकी जानिब देखा। वो आज भी आंखों में तशनगी के लिए नहीं देख रही थी। मैं चाहूँ पापा, वो मुझको मुस्कुराती बोली। बेला, यहाँ मेरे साथ आए। इसके गिर्द अपना मजबूत इशारा करते हुए संजीदगी से बोला। बेला ने उलझ कर इसकी जानिब देखा। वो इसीलिए सिदरा बेगम के करीब आ खड़ा हुआ था। अम्मा जान, इब्राहिम की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोली। इनकी आंखों में नमी देखती बेला तड़प उठी थी। क्या हुआ मिसेस अफजल, आपकी तबीयत ख़राब है? आंखें रेड हो रही हैं आपकी। वो सारे खफ के बुलंद के बराबर आ बैठी थी। उन्होंने बेबसी से इसकी जानिब देखा। इतने करीब बैठी थी वो, इसका एक एक नक्श नज़ पर हो रहा था। ये वो लड़की थी जो बचपन से आंखों में दिखने के लिए नहीं यूं ही तकती थी। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे नाजुक दिन था, नई ज़िंदगी की शुरुआत का। एक लम्हे के लिए तमाम यादें बुलाती, चीखते चिल्लाते, दिल को थप्पी देकर सुलाती।
आगे बढ़ी थी, इसके माथे पर लब रखते सिसकी थी। वो तो उनसे ये लम्स महसूस कर रही थी, इस लम्स के लिए वो आज तक तरसती रही थी। आज मिल रहा था तो यूं, मैं ठीक हूँ, रात बहुत हो गई है, बेला इब्राहिम तुम लोगों को कमरे में जाना चाहिए। आंसुओं को जब्त करते हुए मजबूत लहजे में बोली। ये इनायत बेटी के लिए थी या बहू के लिए मिसेस अफजल? वो जब्त के बावजूद भी आंसू रोक नहीं सकी थी, आंसू झरनों की सूरत बह निकले थे। ये बेला इब्राहिम मलिक के लिए है, वो संजीदगी से बोली। बेला इब्राहिम मलिक को इस इनायत की ज़रूरत नहीं है, इस लम्स की ज़रूरत बेला अफजल मलिक को है, जिसको आप आज तक नहीं दे सकी। कहकर वो रुकी नहीं थी। इब्राहिम ने लब भींच कर इनकी जानिब देखा। आज इन्हें सास की नहीं माँ की ज़रूरत थी अम्मा जान। इसका अंदाज बहुत कुछ जितलाता हुआ था। वो इसके पीछे ही कमरे से निकल गया था। वह कमरे में दाखिल हुआ तो वो जेवर उतारे थे, इसका चेहरा सपाट था। वो कोई एहसास नहीं ढूंढ पाया था। वो खामोशी से उसका हरमल देख रहा था। तमाम जेवर उतार कर रख दी। वो अपनी मखसूस नाइटी लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद वो नाइटी में मलबूस दूल्हे चेहरे के साथ बाहर निकली थी। सूजी सुर्ख आंखें अंदर का हाल खूब बयां कर गई थी। वो अब भी खामोशी रहा, खामोशी से सोफे की जानिब जाती बेला की खिलाई इज्जत में ले चुका था। आप जब तक खुद संबंधी से अपना आप नहीं सौंपेंगी, मैं अपने जायज़ हक का भी आपसे सवाल नहीं करूँगा, जितना वक्त चाहे ले ले। इसके चेहरे से गिरती पानी के कतरों को उंगली की पोरों पर चुनता हुआ संजीदगी से बोल रहा था। इसके इस कदर वाज़े अंदाज पर वो सुर्ख सी हो गई थी। अपने आंसू मुझसे नहीं छुपाया करें बेला, आप मेरी रूह का हिस्सा है। आपको तकलीफ होती है तो कर्ब से मैं गुजरता हूँ। आप यकीन करें नहीं करें, लेकिन आपकी आंखों के ये गुलाबी किनारे मेरे दिल का सुकून अपने साथ ले जाती हैं। सारे आंसू, सारे दर्द मुझे दे दे हनी। इसे बगैर छुए होकर इसके करीब तर हुआ था। इसकी बोझल सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस करते वो बेचैन सी हो गई थी। इन वाहियात नामों से मुझे न पुकारा करे, वो तंग कर बोली थी। बीवी हैं आप मेरी, वाहियात नाम क्या, वाहियात हरकतें करने का भी हक रखता हूँ। अंदर शरीफ हूँ, आपकी इजाज़त के बगैर करीब कम ही आता हूँ। और निचला लब दबाए मुस्कुराया। इंतहाई वाहियात इंसान है आप, सस्ते तरीन आला दर्जे की ठरकी। इसकी मुस्कुराहट पर आंखें छोटी किए गुस्से से घूरती वो पूरी ताकत से अपना सर इसके थोड़ी पर मारती हुई बोली थी। उसका कद इसके सीने तक ही आता था। अपने सर का इस्तेमाल भी उसके चेहरे पर पूरे जोर से करती थी। ये जल का बात आप मुझे देती हैं ना मिसेस इब्राहिम, कभी मैं इन पर पूरा उतरने पर आया तो आप क्या करेंगी? छुप कर अपने थोड़े इसके लब के करीब रखते हुए जेते लहजे में बोला। ये सब इतने अचानक हुआ था कि वो समझ नहीं इसके कि क्या हुआ है। अपने लबों पर इसके शेव की चुभन महसूस करते ही इसे 100 वाट का करंट लगा था। सस्ते वाहियात इंसान जहन्नुम में जाए। वह इस पर 4 हर्फ बेचती बेड पर चादर लेटती चादर सर तक तान गई थी। इससे इस हरकत की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो लबों पर अब जुबान से महसूस हो रही थी। हीरो तो मानती है ना? इसकी मुस्कुराती आवाज़ समाज से टकराई थी। बिना देखे भी वो जानती थी वो लब दबाए मुस्कुरा रहा होगा। ठरकी खबीस आदमी वो जलकर बड़बड़ाई। वह कम्फर्ट मुँह तक ताने अपनी सांसें हमवार कर रही थी। इसके दूसरे जानिब लेटने पर वो झटके से उठ बैठी। शराफत से अभी इसी वक्त बेड खाली कर दे, वह सख्त झंझलाई हुई आवाज़ में बोली थी। इसकी कुछ देर पहले की हरकत पर धड़कनें अभी मुंतशिर थी। वह शरारत से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। कितना खूबसूरत रंग था इस वक्त इसके चेहरे पर। ब्लैक शफाफी के अपने मखसूस लिबास में मलबूस काले बाल चारों पर बिखरे हुए थे। काली आंखें, इन पर सदा मुड़ी मुड़ी पलकें, जिस वक्त चादर की मादत उड़ती गिरती सामने बैठे शख्स को खासी अपील कर रही थी। गुलाबी लब जिन्हें सख्ती से बींच रखे थे और थोड़ी खबो भरा, जिसकी खफकी में पूरा साथ देता खफा खफा सा था। इसी आंखों में मोहब्बत लिए अपनी जानिब तकते देख वो चिंचिला कर बैठ से उठने लगी। बेला, एक बात ज़हन नशीन कर ले, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर करीब नहीं आऊँगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन आपकी ये बेएतबारी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इसका हाथ थाम कर वापस बिठाता हुआ संजीदगी से कहते से काफ़ी फासले पर लेट गए। मेरा ख्याल है अब हमें इसी कमरे में गुजारा करना है, तो हमें कुछ कंडीशंस रख लेनी चाहिए। इसके बाद न मैं आपको तंग करूँगी ना आप मुझे। मैं चंद पल आंखें छोटी की इसकी पूछ को घूरते रहने के बाद तामुल से बोली। कैसी कंडीशंस? उसने रुख मोड़े बगैर ही सवाल किया। फिर उनकी मम्मी से बातें नहीं कर सकती मैं उठकर बैठे। मेरी सारी कंडीशंस अपने गरीब दिमाग में बिठा ले, वरना चौंक के रुखते के बाद ये कमरा मेरा हो गया तो आपको निकाल बाहर करूँगी। इसकी चौड़ी पोस्ट की जानिब देखते हुए चल कर बोली। वह उसकी जानिब रुख करता संजीदगी से अपनी कुछ देर पहले बनी दुल्हन को देख रहा था, जो पूरे हक से इसके कमरे में इसके बेड पर बैठी इसे ही अपने कमरे से निकालने की धमकी दे रही थी। वह महफूज होता मुस्कुरा उठा, नजरों से इसे शुरू करने का इशारा किया।
आप मुझ पर कोई शराना हकूक नहीं जताएंगे, मुझसे 2 फुट की दूरी पर रहा करेंगे, मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, मिसेस अजहर के सामने मेरी तारीफें करेंगे, मेरी कॉफ़ी पर नजरें नहीं काढ़ेंगे, मुझे किसी वाहियात नाम से नहीं बुलाएंगे, मेरे सामने सस्ते शाहरुख खान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बेड सेंटर तक मेरा होगा, आप बिल्कुल कॉर्नर पर सोया करेंगे, और मेरे बच्चों को यानी बहू और बिया को अपने बच्चे समझकर इन पर रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो प्योर मेरे बच्चे हैं। उंगलियों पर गिनकर अपनी तमाम शराइत बताकर वो संजीदगी से उसकी जानिब देख रही थी। मुझे इत्मीनान से इसकी तमाम शर्तों पर सर को खम दे रहा था। आखिरी बात पर आंखें सुखेड़ कर उसे देखने लगा। वो अच्छी तरह जानता था इसकी 15 साल औलाद को। इत्मीनान रखे, मैं सिर्फ अपने बच्चों पर रोब रखूंगा। मुस्कुराहट दबाए वो भरपूर संजीदगी से बोला, हाँ ठीक है, अपने बच्चों के साथ आप कुछ भी करें, मुझे क्या, मैं तो। वो अपनी धुन में जोर शोर से इस बात में सारी रात बोल रही थी। बात की गहराई समझ आने तक वो गुलनार हुई थी। इसके चेहरे की बदलती रंगत पर इब्राहिम बेसाख था, मटाने वाला कहका। तब वह संजीदगी से इसे देखने लगा। आंखों में वाज़ेह शरारत झलक रही थी। इंतहाई फजूल इंसान है आप, गुर्बत की चलती फिरती मशीन। वो खजल से होती सुर्खियों में पुलिस की जाने पुष्ट के लेट गई। अगले ही लम्हे झटके से कंफर्टर भी खींच चुकी थी। अपने लिए कंबल का इंतजाम खुद कर ले, इस पर हक सिर्फ मेरा है। वो खजल से होती सुर्खियों में पुलिस की जाने पुष्ट के लेट गई। अगले ही लम्हे झटके से कंफर्टर भी खींच चुकी थी। अपनी तमाम शराइत बता दी आपने, और खादिम में तस्लीम भी कर ली। जो गरीब की भी सुन ली। उसकी जानिब झुकते उसके चेहरे से कंफर्टर उठाई। वो धीरे बोला। वो इतने करीब से इसे देखती पजल सी हुई थी। इलाका खैर में दाखिला ममनू है। बेड पर इसकी जगह जानिब इशारा करती वो धीमी आवाज़ में इसे चंद लम्हे पहले की शर्त याद दिला रही थी। मुकम्मल जंगजुओं के कबीले से ताल्लुक़ लगता है आपका। इसके माथे पर से बालों को सेट करते हुए नफी में गर्दन हिलाता बोला। इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसके माथे पर लब रखे इसे खामोश करवा गया था। इस एक लम्हे वो अपनी तमाम तर शिद्दतों से इसे रोशनास करवा देता था। ये मेरी शर्त है, इसे आप मुझे नहीं रोकेंगे। हौले से एक बार फिर इसके माथे को छूता हुआ इसकी मीठी आंखों को देखता हल्का सा मुस्कुराया। सो जाए, अब नहीं आऊँगा मैं इलाके गैर में। इसकी मीठी आंखों को उंगलियों की पोर से छूता हुआ मुस्कुराते लहजे में कहता, अपनी साइड पर लेके आ जो कुछ देर पहले वो मुकर्रर कर चुकी थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।